Hello students, welcome back to another video from our YouTube channel, that is Vipin Chavda Chemistry and Biology Tutorial. In this video we will discuss about indicators and types of indicators or color of indicators in acidic, basic or neutral solution. What are the indicators? Indicators are the chemical substances which tell us whether the solution is acidic, basic or neutral, are called indicators. Or the chemical substances which change their color in acidic, basic or neutral solution are called indicators. Like for example, litmus, phenol, phthalate, methyl orange, turmeric, vanilla, onion and clove. These are the examples of the indicators: litmus paper, phenolphthalein, methyl orange, turmeric, vanilla, onion and clove. Indicators are two types. There are two types of indicators. There are two types of indicators. Number one, natural indicators. What are natural indicators? Those indicators which are obtained from plant and animal or nature are called natural indicators. The indicators which are obtained from plants and animals or in nature are called natural indicators. Like for example, turmeric, onion, clove, litmus and vanilla. These are the natural indicators. Natural indicators are those indicators which are obtained from plants as well as from animals are called natural indicator. Turmeric, litmus, onion, clove, these are obtained from plants. So these are natural indicator. Second one is synthetic indicators or artificial indicators. Those indicators which are not obtained from plant and animals or which are prepared in the laboratory are called synthetic or artificial indicators. The indicators which are prepared in the laboratory or man-made indicators are called synthetic indicators. So the indicators which are prepared in laboratory, like methyl orange, phenolphthalein, these are the indicators which are prepared in the laboratory. So these are called synthetic or artificial indicators. So this is all over about the indicators and the types of indicators. Now, what are the colors of different indicators in acidic, basic or neutral solution? How can we check the solution is acidic, basic or neutral? So, first of all, we will discuss about litmus paper. The first indicator is our litmus paper. Litmus paper is litmus paper
litmus paper is blue litmus and red litmus। हमारे पास जो लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर दो टाइप का होता है, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। जब हम ब्लू लिटमस को, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं हमें, 3 टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमें कुछ सॉल्यूशन दे रखा है, कुछ मीडियम दे रखा है, और हमें ये चेक कर रहा है कि इनमें से हमारा जो मीडियम है वो एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है और न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है। तो हम किसका यूज करेंगे, लिटमस पेपर का। जैसे हम लिटमस पेपर को इन सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर इस लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। जब कलर चेंज होगा तो हम पता लगा सकते हैं, जब कलर चेंज होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी पुट द ब्लू लिटमस इन द सॉल्यूशन इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, first of all the color of blue litmus change into red when it is dipped in the acidic solution, or red litmus change into blue in basic solution. In acidic solution the blue litmus change into red and red litmus change into blue in basic solution। सबसे पहले कि जो लिटमस पेपर है हमारा, इसका कलर एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस रेड के अंदर चेंज हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू के अंदर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि लिटमस, फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज जो है ये अपना कलर कैसे चेंज करते हैं। इनका कलर क्या होगा इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन बेसिक सॉल्यूशन एज वेल एज इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल indicators in acidic solution, basic solution and neutral solution. Our first indicator is litmus. The color of blue litmus change into red in acidic solution. तो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर किस में चेंज होगा, रेड के अंदर। जो ब्लू लिटमस को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड के अंदर चेंज हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड का कलर ब्लू हो जाएगा, और न्यूट्रल के अंदर नो चेंज। अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ तो रेड लिटमस ब्लू के अंदर चेंज नहीं होगा और ब्लू लिटमस रेड के अंदर चेंज नहीं होगा। तो क्या हुआ, यहां से क्या पता चला हमें कि जो लिटमस पेपर है वो दो टाइप का होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को पुट करते हैं तो ब्लू लिटमस रेड के अंदर चेंज हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जब रेड लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू के अंदर चेंज होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर रेड और ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। एंड इन फिनोल्फथैलीन इज अ आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो जब फिनोल्फथैलीन को हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर पुट करेंगे तो इसका क्या कलर होगा। तो जब हम फिनोल्फथैलीन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इन कलरलेस। जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। हमारा सॉल्यूशन कलरलेस मींस कि फिनोल्फथैलीन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कलरलेस हो जाता है, एज वेल एज इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इट आल्सो कलरलेस। और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी क्या होगा, कलरलेस होगा। बट इन बेसिक सॉल्यूशन द फिनोल्फथैलीन चेंज इनटू पिंक कलर, इन पिंक कलर, दैट इज लाइट पिंक। जो कलर होगा वो कौन सा होगा, हमारा लाइट पिंक होगा। तो यहां से क्या हमें पता चल रहा है कि फिनोल्फथैलीन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर अपना कलर चेंज नहीं कर पाएगा। जब एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोल्फथैलीन को डालेंगे तो ये सॉल्यूशन को कलरलेस कर देगा, बेसिक में, न्यूट्रल में डालेंगे तो भी उसको क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा। बट इन बेसिक सॉल्यूशन द कलर ऑफ
solution change into light pink or in pink color. The third indicator is methyl orange. The third indicator is methyl orange. When we put methyl orange in acidic solution, the color of methyl orange change into red. तो क्या होगा, जब मिथाइल ऑरेंज को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर रेड के अंदर चेंज होगा. मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, तो ये ऑरेंज कलर चेंज हो जाता है रेड के अंदर इन एसिडिक सॉल्यूशन, और इट चेंज इनटू येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन. जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज को डाल रहे हैं और उस सॉल्यूशन का कलर येलो हो गया, दिस मींस हमारा सॉल्यूशन बेसिक है. और in neutral solution the color of methyl orange is orange. जो मिथाइल ऑरेंज है वो कलरलेस रहेगा, वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज ही रहेगा. मींस कि मिथाइल ऑरेंज जो है उसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज, और वो ऑरेंज कलर यहाँ पे न्यूट्रल के अंदर ऑरेंज ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा. तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जब लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, अगर रेड लिटमस ब्लू के अंदर चेंज हो गया तो वो होगा बेसिक सॉल्यूशन. अगर ब्लू लिटमस रेड के अंदर चेंज हो गया तो वो होगा एसिडिक सॉल्यूशन. अगर ब्लू और रेड लिटमस के अंदर कोई चेंज ना आए तो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन. फिनोल्फथैलीन एसिडिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज नहीं कर पाता. जैसे ही फिनोल्फथैलीन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कलर लेस हो जाएगा. मींस कि जिस सॉल्यूशन के अंदर फिनोल्फथैलीन का कलर कलरलेस हो जाएगा वो या तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा या न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा. बट इन बेसिक सॉल्यूशन जैसे ही हमने फिनोल्फथैलीन को एक सॉल्यूशन के अंदर डाला, एक मीडियम के अंदर डाला, और मीडियम के अंदर डालते ही इसका कलर अगर पिंक के अंदर आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन बेसिक है. और मिथाइल ऑरेंज को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर सॉल्यूशन में डालने के बाद उसका कलर अगर रेड आ जाए मींस सॉल्यूशन एसिडिक है. अगर उसका कलर येलो हो गया तो सॉल्यूशन बेसिक होगा. अगर उसका कलर ऑरेंज हो गया तो मींस हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है. तो हम इंडिकेटर्स के हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. तो इनके अंदर क्या होगा, इन इंडिकेटर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज हो रहे हैं. तो वो इंडिकेटर्स, वो सब्सटेंसेस जो हमें ये बताते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है बाय चेंजिंग द कलर इन द सॉल्यूशन. तो वो सब्सटेंसेस जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में अपने कलर को चेंज कर लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं. तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट डेफिनेशन तो ये बन गई, हम ये लिख सकते हैं. और सेकंड डेफिनेशन क्या है, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच चेंज देयर कलर इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन. और क्या लिख सकते हैं हम, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. और इंडिकेटर्स हमारे दो टाइप के, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स. उसके बाद ये इंडिकेटर्स अपना कलर कैसे चेंज करते हैं तो ये हमने पढ़ लिया. देयर आर सम अदर इंडिकेटर्स व्हिच चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. देयर आर सम इंडिकेटर्स व्हिच चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. Those indicators are called olfactory indicators. तो कुछ इंडिकेटर्स या कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, और उन इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं, olfactory indicators. तो नेक्स्ट वन इज olfactory इंडिकेटर्स. तो क्या होता है olfactory indicators? द केमिकल substances which change their odor. Odor means smell. Which change their smell in acidic or
बेसिक सॉल्यूशन और मीडियम, या तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे या मीडियम, एसिडिक बेसिक मीडियम या एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन। द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड olfactory इंडिकेटर्स। तो वो इंडिकेटर्स जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपनी स्मेल के अंदर चेंज कर लेते हैं उनको क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल्स ऑनियन, वेनिला एंड क्लोव। These are the indicators which change their smell in acidic, basic or neutral solution. Those indicators are called olfactory indicators. तो इसके एग्जांपल क्या हैं? ऑनियन प्याज, वेनिला वेनिला, क्लोव लौंग। क्लोव क्या होता है हमारा? लौंग। ऑनियन प्याज, वेनिला वेनिला। This is all over about the indicators. In next lecture we will discuss about chemical properties or chemical reactions of acid or base with different compounds like metal oxide, acids, bases. This is all over about the indicators. I hope आपको ये lecture समझ आया होगा. Thank you and have a nice day.